Hello students, Assalamu alaikum. This is Ali Bhangar and I welcome you in today's class. तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक का नाम एंड आज ये टॉपिक मैंने क्यों डिसाइड किया आपको टीच करने के लिए. तो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक्स ऑफ इंग्लिश. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जब आप क्लासेस में जाते हो और आप ग्रामर को स्टडी करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. अगर टीचर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग एंड टेलिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गिव द आंसर. वो जवाब नहीं दे पाते. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स देयर? उन्हें जवाब आता है, जवाब आने के बावजूद भी आपका पार्टिसिपेशन लेवल इतना अच्छा नहीं रहता. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? आपने जो भी चीजें आज तक पढ़ी हैं उन्हें अच्छे तरीके से मेमोराइज नहीं किया. सो द पॉइंट इज, तो आप जवाब भी नहीं दे पाते हो. तो आज के लेक्चर में हम जो भी पॉइंट्स, जो भी आउटलाइन स्टडी करेंगे उन सबको आपने थरली मेमोराइज करना है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? सो बिफोर मूविंग ऑन टू द फर्स्ट हेडिंग, आई जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन. डू यू नो what is list of subject? Just think of it now. List of subject क्या होती है? Okay, आपने सोचा, now most of you will be thinking हमें तो आती है. Now I just ask you another question. How many words exist in the list of subject? Total कितने words हैं? Think of it now. क्या आपको पता है? That's good. Okay, come now. So here we have list of subject. So list of subject में ये words आते हैं. And keep it in the mind, whatever we are going to discuss today, you people have to memorize all the points. Is it clear now? So these words we have in the list of subject. First one is I, we, you, they, he, she, it, name. Now simply you people have to learn all these words. Is it clear now? So sequence we just make now. I just make it more simple for you people. Simply you just say I, we, you, they, he, she, it, name. That's it. Okay, keep it in the mind. What is the list of subject? कोई भी कभी भी पूछे कि list of subject क्या होती है, you would say I, we, you, they, he, she, it, name. So I just ask you now, how many total words are there? Total words are 8. Is it clear? Okay. Second heading which you people have to learn now. So directly I just ask you a question before moving on to that. I just ask you, what is the list of pronoun? Think of it now. List of pronoun क्या होती है? सोचे? Okay, do you know that? See now. Here we have list of pronoun. Yes, list of subject and list of pronoun, they both are same. असल में ये तमाम सारे वर्ड्स लिस्ट ऑफ प्रोनाउन के अंदर ही, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं. लेकिन जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम इनको सब्जेक्ट बुलाते हैं. सो एक्चुअली दे आर प्रोनाउन, लेकिन सेंटेंस में इन्हें सब्जेक्ट कहा जाता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सी द लिस्ट नाउ हियर. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. कैन यू सी द डिफरेंस हियर नाउ? In the list of subject, you people have 8 words, but in the list of pronoun, you people have 7 words. Name pronoun के अंदर exist नहीं करता. अगर आपको पता है कि pronouns क्या होते हैं, तो pronouns simply क्या होते हैं? Pronoun वो words होते हैं जो noun की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं. तो इसलिए यहाँ पर name exist नहीं करता. So that is the list of subject. I, we, you, they, he, she, it, name. But when you will be asked about the list of pronoun, you would say I, we, you, they, he, she, it. That's it. Clear now? Okay. Moving on to the next one now. Can you see here? Person pronoun. Basically pronouns को हम categorize करते हैं. What is their importance? Obviously you will see them, their usage in upcoming videos. कहाँ use होते हैं, कैसे होते हैं, you will get to know very soon. But the point is, आपसे जब कभी भी क्लास के अंदर कोई भी टीचर, if the people ask you a question, what is first person pronoun? So you can see here, first person pronoun is I and we. Got it now? Second person pronoun, it is you. And third person pronouns कितने होते हैं? He, she, it, they. Is it clear to all of you? आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये मेमोराइज करना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में
क्या आता है। Got it now? So it is all about for you people. We just move on to the next heading now. See, हमने ये सब याद करना है. I am again and again repeating my words. You people have to memorize all these points very well. Got it? आपको ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी. So next heading we have here kinds of sentence. आपको पता है सेंटेंस क्या होता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेंसेस. टेंसेस आपको पता है 12 होते हैं. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटेंसेस. बेसिकली सेंटेंस और टेंस में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. क्लास में जब उनसे क्वेश्चन किया जाए इस टेंस के बारे में बताओ, दे यूजुअली थिंक अबाउट सेंटेंस. अगर बंदा क्वेश्चन करता है कि अच्छा ये लिखा हुआ सेंटेंस कौन सा है, दे पीपल गिव द आंसर ऑफ टेंस, दे पीपल टेल अस अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस. ये टोटली रॉन्ग होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटेंस है. आपको ऑलरेडी याद हो, आपको पहचानना आना चाहिए. सी नाउ, फर्स्ट वी हैव डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर स्पेशली वी टॉक अबाउट द स्टेटमेंट्स. लाइक आप जो काम करते हो उन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वही डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. गॉट इट नाउ? अब एक लिखा हुआ जुमला, क्या वो सिंपल है, क्या वो इंट्रोगेटिव है, क्या वो इंपेरेटिव है, क्या वो एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑप्टेटिव है? गॉट इट नाउ? वो सेंटेंस लिखा हुआ क्या है, किस तरीके से पहचाना जाता है, यू पीपल हैव टू सी इट नाउ. डिक्लेरेटिव, आई मीन टू से सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है? उसका पहला वर्ड सब्जेक्ट होगा, आखिर में फुल स्टॉप होगा. लाइक आई एम प्लेइंग क्रिकेट. ओके, दे आर वॉचिंग कार्टून्स. दे आया शुरू में, आखिर में फुल स्टॉप. इट इज कंसिडर्ड सिंपल सेंटेंस. डन. नाउ लिखा हुआ जुमला इंट्रोगेटिव होगा. किस तरीके से पता चलता है? शुरू में हेल्पिंग वर्ब, एंडिंग में यू विल सी इंटरोगेशन मार्क वहां पे प्लेस होगा. गॉट इट नाउ? सो थ्रू दिस वी जस्ट गेट टू नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस. ओके, देन इंपेरेटिव सेंटेंसेस ये कौन से होते हैं? बेसिकली ये हुक्मिया जुमले कहलाते हैं, जिसमें आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो या फिर ऑर्डर देते हो. इंपेरेटिव पहचानना बहुत ही ईजी होता है. इंपेरेटिव सेंटेंस का पहला वर्ड वर्ब के फॉर्म होते हैं. फर्स्ट फॉर्म यूजुअली फर्स्ट फॉर्म ही आती है. कम हियर, टॉक टू मी, सिट डाउन, गो फ्रॉम हियर. सो लाइक दिस. हमेशा फर्स्ट वर्ड वर्ब के फॉर्म होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा, देन फुल स्टॉप. दैट्स इट. ना तो आपको कोई सब्जेक्ट और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई देता है किसमें? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में. वेल, इस पे डिस्कस डिटेल में बाद में की जाएगी. कीप इट हियर नाउ. तो इंपेरेटिव हुक्मिया जुमले जो 2 वर्ड्स के होते हैं, जिसमें वर्ब के फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट होता है. दैट्स इट. देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, व्हाट दे आर बेसिकली. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आप अपने एक्सप्रेशंस को मींस के शो कर रहे होते हो. सो लाइक देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार. सो इस तरीके से ब्रावो, यू हैव डन इट, शाबाश, आखिरकार आपने कर दिखाया. तो ये वर्ड्स आपने सुने होंगे जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है. सो दे आर वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई. ओके, तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देगा, देन यू विल गेट टू नो कि किसकी बात हो रही है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की. देन ऑप्टेटिव सेंटेंस, व्हाट दे आर बेसिकली. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं दुआइया जुमले. इन सेंटेंसेस के अंदर वर्ड मे का इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल लाइक आई जस्ट गिव यू, मे यू लिव लॉन्ग, मेरी दुआ है कि आप लंबा जिए. ओके, मे यू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, मेरी दुआ है कि तुम अपनी जिंदगी में कामयाब हो. सो देयर आर लॉट ऑफ सेंटेंसेस लाइक दिस जिसमें मे का वर्ड यूज करते हैं. यूजुअली आपने पढ़ा होगा, मे यू हैव मेनी मोर बर्थडेज. आप किसी को विश करते हुए लिख देते हैं फेसबुक के अंदर, सोशल मीडिया पे, कि आप आने वाले साल में बहुत सारी और मींस के बर्थडेज देखें. तो लाइक इन सेंटेंसेस में वर्ड मे का इस्तेमाल किया जाता है. क्लियर नाउ? सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस. लिखा हुआ जुमला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमें आगे क्या करना है. तो आपको पहचानना आना चाहिए. शो मूविंग फर्दर नाउ. ओके, नेक्स्ट हेडिंग वी हैव नेम्स ऑफ टेंसेस. जब क्लास में पार्टिसिपेशन होती है तो याद रखें, जब भी कोई भी टीचर आपको ग्रामर पढ़ाना शुरू करता है तो सबसे पहले उनकी हेडिंग, यूजुअली सबसे पहले उनकी हेडिंग क्लास में क्या होती है? नेम्स ऑफ टेंसेस. देन दे स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू इट. जस्ट लीव अदर थिंग्स हियर. आपको सिंपली क्या करना है, ये तमाम सारे नेम्स विच यू कैन सी हियर आपको याद करने हैं.
क्लास में पार्टिसिपेशन होगी, लेक्चर्स किस तरीके से सिंपल होते हैं यू विल गेट टू नो वेरी सून। लेकिन सबसे पहले आंसर चाहिए। सी नाउ वन थिंग आई जस्ट आस्क यू, ये 12 टेंसेस जो आपको यहां पर दिखाई देते हैं, व्हाट डू पीपल हैव टू डू? मेमोराइज देयर सीक्वेंस। इनका सीक्वेंस याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एज यू विल सी माय अदर वीडियोस, मैं आपको ग्रामर की आसानी के लिए ये बात बोल रहा हूं कि मेमोराइज इट। क्यों? बाद में पता चल जाएगा। सो सी नाउ व्हाट टोटल नेम्स वी हैव हियर। एज यू नो 12 टेंसेस होते हैं, सबको पता है। सो सी, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट perfect continuous, fifth one past indefinite, then past continuous, past perfect continuous, ninth one is future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Simply what do people have to do now? Learn all the names in the sequence. आपको काफी फायदा होगा। अगर आप नहीं करना चाहते, it is up to you people, but I would say याद कर लो। एज आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, जब भी पूछे कोई लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या है, नो नीड टू थिंक ऑफ इट, ही शी इट दे आई, 5 होते हैं सर, 6 होते हैं, नो नीड टू डू लाइक दिस, डायरेक्टली से आई वी यू दे he she it name, that's it sir. 8 words we have in the list of subjects, so that's why I am telling you इनका इन सब का सीक्वेंस याद करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई पूछा जाए टेंस नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सो थ्रू दिस यू विल आंसर देम। ओके, नाउ वी जस्ट मूव फर्दर, लेट्स सी व्हाट अनदर हेडिंग वी हैव हियर। ओके, important helping verbs of all the tenses. Now simply what you people have to do, आपको ये तमाम सारे helping verbs याद होने चाहिए शुरू से ही, और हमने याद करने हैं। So are you ready for this heading now? Let's start this. Present indefinite, no helping verb, like I play cricket, I go to school, I wake up early in the morning. There isn't any helping verb in these like you can say tenses, in present indefinite especially. So we don't use any helping verb in present indefinite tense. Now present continuous is am-are. So what helping verbs we have here is am-are. Present perfect has and have, present perfect continuous has been, have been. Past indefinite no helping verb, past continuous was, were. Past perfect had, past perfect continuous had been. Future indefinite will, shall. Future continuous will be or shall be. Future perfect will have or shall have. Future perfect continuous will have been, shall have been. So simply now what do people have to do? Memorize all the helping verbs very well. Got it? Like if I ask you what helping verb do we have for past continuous? Was and were. Future indefinite will and shall. Present perfect has and have. Past indefinite no helping verb. Future perfect continuous will have been, shall have been. Got it now? तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये तमाम सारे helping verbs याद होने चाहिए। Sure. Moving on to the next heading now. Okay, after that what we have here, forms of verb, like in different tenses we people have different forms of verb. So let's start now. इनको जल्दी से memorize करते हैं। Sure, are you ready? See, present indefinite tense number 1. What verb form we use in present indefinite tense? Verb first form. Got it? Then present continuous. So what verb form we have here? Verb first form plus ing. One thing I want to share with you people here, काफ़ी सारे टीचर्स या आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि लिखा होता है वर्ब फोर्थ फॉर्म, वर्ब फोर्थ फॉर्म लिखा हो या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लिखा हो, दे बोथ आर सेम. गॉट इट? सो नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड. प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब सेकंड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फ्यूचर इंडेफिनिट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस verb first form plus ing. Got it now? As you people can see here all the verb forms. Now I just give you the tricks. अब मैं आपको simple tricks देके ये सब याद करवाऊंगा. Got it? My first question to you people is, how many continuous tenses are there out of 12 tenses? 12 में से continuous tenses कितने होते हैं? We have 6. C. Present continuous verb first form plus ing. Present perfect continuous verb first form plus ing. Simply I am trying to tell you, जब भी continuous का नाम सुनेंगे you will say verb first form plus ing. So 6 tenses we have. तो 6 की verb की form हमें याद हो चुकी. Now we have perfect tenses. So I just ask you, out of 12 tenses how many perfect tenses we have? 12 में से perfect tenses हमारे पास कितने हैं? We have 3. Present perfect we use verb third form. परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस एम्फसाइज करता है, ठीक है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो कंटिन्यूअस कहलाता है, वो परफेक्ट नहीं होता. आई एम टॉकिंग सिंपली अबाउट परफेक्ट टेंसेस. तो जो भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें हम क्या यूज करते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म. सो 6 and 3 9 टेंसेस. Past indefinite is the only tense in which we use verb second form. Verb second form किसी और में यूज नहीं होती. ओके बाकी बचे 2 टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. इन बोथ ऑफ देम वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इन दोनों टेंसेस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. अच्छे तरीके से हमें वर्ब के फॉर्म्स भी याद करने हैं. शो कम लेट्स मूव नाउ. ओके सो हियर वी हैव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चार्ट. गॉट इट? बहुत सारे स्टूडेंट्स यूजुअली दे आस्क मी क्वेश्चंस इन द क्लासेस, सर पैसिव में कन्वर्ट करना नहीं आता, बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं, समझ में नहीं आता. तो आपने जितनी आज के लेक्चर में चीज़ें याद की हैं, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम अगर ये आप याद करेंगे, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है आपके लिए. सो कम नाउ लेट्स मेमोराइज दिस चार्ट. ये याद करना है अच्छे तरीके से. सो लुक एट दिस. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपके पास सेंटेंस आया और आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो व्हाट विल यू डू नाउ? आप अपनी तरफ से क्या हेल्पिंग वर्ब उसमें ऐड कर दोगे? इज, एम, आ. गॉट इट? प्रैक्टिस क्या होती है इन अपकमिंग वीडियोस जो आपके एक्टिव एंड पैसिव के लेक्चर होंगे, वहां पर हम देखेंगे कि यूज कैसे करते हैं. राइट नाउ जस्ट मेमोराइज देम. गॉट इट? देन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया और हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो व्हाट विल वी डू? इज एम आर प्लस बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा. ऑलरेडी इज एम आर लिखा होता है, हम उसका पैसिव बनाते हुए क्या यूज करेंगे? इज एम आर प्लस बीइंग. डन. देन प्रेजेंट परफेक्ट यू विल यूज हैज बीन, हैव बीन. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वी डोंट मेक पैसिव फॉर दिस. आप कहेंगे क्यों नहीं बनाते? जस्ट लीव इट राइट नाउ. जब इसका लेक्चर होगा देन आई विल गिव यू द आंसर बाय माई सेल्फ. ओके नाउ पास्ट इंडेफिनिट, अगर सेंटेंस आया पैसिव बनाना है, व्हाट विल वी यूज? वॉज इन वर्ब. पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, यू विल यूज वॉज वर्ब प्लस बीइंग. पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड बीन विल बी यूज्ड देयर. ओके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता. देन अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस आया, हमें पैसिव बनाना है, वी विल यूज विल बी एंड शैल बी. फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस हम पैसिव नहीं बनाते. फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हम यूज करेंगे विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन. गॉट इट? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता. सो नाउ द थिंग इज, आउट ऑफ 12 टेंसेस, फॉर हाउ मेनी टेंसेस वी मेक पैसिव फॉर्म? कितनों का पैसिव बनाया जाता है? 8 का बनाया जाता है, 4 का नहीं बनाया जाता. इफ यू कैन सी हियर, जिन 4 का नहीं बनता उन चारों का नाम कंटिन्यूअस है. डन. टोटल कंटिन्यूअस मैंने कितने आपको याद करवाए? 6 होते हैं. सिर्फ 2 कंटिन्यूअस टेंसेस का पैसिव बनता है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक पास्ट कंटिन्यूअस. बाकी चारों कंटिन्यूअस टेंसेस का पैसिव नहीं बनता. सो आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से याद करना है. शो ओके. Next one, direct and indirect speech.
change of tense chart, what usually you people say the toughest exercise. सबसे ज़्यादा इसको मुश्किल माना जाता है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है. Just memorize this chart, things will automatically be simple for you people. Got it now? Come on, let's start this. अगर present indefinite का sentence आएगा और आप उसका indirect speech बनाएंगे, so what will it become? It will become past indefinite. What I am trying to tell now, see, I live in Karachi. I live in Karachi, ये present indefinite है. आपसे कहा जाए कि इसको आप convert कर दो indirect speech के अंदर. So what will you do? I live in Karachi will become I lived in Karachi. वो past indefinite में convert हो जाएगा. Got it now? So these are the rules here. Then present continuous will become past continuous. I am trying to say is, am, are will become was, were. Got it? Then present perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous. Clear? After that, fifth one is past indefinite. Memorize it now. Past indefinite will be converted into past perfect tense. Then past continuous, past perfect continuous बन जाएगा. Past perfect no change. I mean to say past perfect ही रहेगा. अगर लिखा आएगा he had killed the snake, so वो आंसर में रहेगा he had killed the snake. आप चेंज नहीं करेंगे. Then past perfect continuous, it will remain the same. Past perfect continuous ही रहेगा, no change. Future indefinite बन जाएगा would. What I am trying to tell you here, will लिखा हो shall लिखा हो, दोनों would बनेंगे. will, would, shall, should नहीं बनेगा. will लिखा हो shall लिखा हो, they will be converted into would. Got it? Then future continuous would be, future perfect would have, future perfect continuous would have been. So this is all about for this chart. आपको ये बहुत ही अच्छे से याद करने हैं. Then you will do the practice of direct and indirect speech. I am 100% sure टॉपिक बहुत easy होगा. आपको किसी की help की need नहीं पड़ेगी. आप खुद से solve कर सकते हैं exercises. Sure. So well, I hope that you will find today's lecture very informative और आपको ये बहुत ज़्यादा help out करेगा. तो आज की क्लास को हम यहाँ पे over करेंगे. Different points, different headings we have discussed today. Again I just repeat my words. आपको सब चीज़ें क्लास अटेंड करने से पहले ही याद होने चाहिए. टीचर आपसे क्वेश्चन करें, you will directly answer them and will participate in the class. Got it? बहुत सारे लेक्चर easy हो जाएंगे. Even though I just tell you in the one go, just in the one go you will understand your topics. एक ही दफ़ा के अंदर सारे concepts clear हो जाएंगे. So this is all about for today's class. Best of luck. Thank you so much. Allah Hafiz.